আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনকে সামনে রেখে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হল আসানসোলে। সস্ত্রীক তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক, জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি অভিজিৎ ঘটক সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। मोबाइल पे ढुका करना उसका चेहरा ही नहीं आ रहा। शत्रु जी को आने दिया आगे। सारा मोबाइल का फोन। दीदी हाथ नीचे, हाथ का नीचे, हाथ नीचे। सामने ना छेड़ा। हाँ सामने सामने क्या करेगा होगा ना। दादा कैमरा का सामने दिया सोराबन, कैमरा का सोरान सामने से हटिए। আসানসোলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর। এই দুটো বছর লড়াই করার বছর, এই দুটো বছর ইস্কো বাঁচানোর বছর, এই দুটো বছর হচ্ছে চিত্তরঞ্জনের লোকোমোটিভ কারখানা বাঁচানোর বছর। বিক্রি বিজেপি বিরোধিতা করবে না, কংগ্রেস এখানে ভোট পাবে না, সিপিএম জিততে পারবে না। তাই সবাইকে বোঝাতে হবে, আপনার বাড়ি আপনার পাড়াতে যত বাড়ি আছে সবাইকে গিয়ে বোঝান যে আসানসোল বাঁচাও এবং শত্রুঘ্ন সিনহাকে জেতাও। আসানসোলকে বাঁচাতে হবে, শত্রুঘ্ন সিনহাজিকে জেতাতে হবে। এটাই আমাদের আজকের থেকে সংকল্প। এরপরে সেই সেন্ট্রাল পার্টি অফিসে যাব। সেন্ট্রাল পার্টি অফিসের আজকে ওপেনিং হবে, নির্বাচনী কার্যালয়। এইটুকু কথা বলে সকল अरे बोल ওই ছেলেগুলো তো বল, ছেলেগুলো তো বল। চট্টোপাধ্যায় বিধান সবাই মিলে আলোচনা করছিলাম এবং আলোচনার সময় আমরা ঠিক করেছিলাম যে আপনাদেরকে আমরা একটা জায়গায় ডাকবো, ডেকে আগামী দিনে এই গোষ্ঠীগুলির কাজ আরো কিভাবে বাড়ানো যায়, কিভাবে আপনাদেরকে 26 দিন 30 দিনের মধ্যে 26 দিনই এনগেজ রাখা যায়, সেই ধরনের প্রকল্পগুলো তৈরি করতে হবে। তো যেদিন আমরা আলোচনা করলাম তার মধ্যে 2-3 দিনের মধ্যেই ভোট ডিক্লেয়ার হয়ে গেল। এবারে ভোট ডিক্লেয়ার হয়ে গেল আগামী 12 তারিখে ভোট। 12 তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে অনেক দেরি হবে। তাই আমরা মাত্র 2 দিন আগে ঠিক করলাম যে না, আপনাদের একটা সভা আমরা করব, আমাদের প্রার্থী এবং প্রার্থীর যিনি সহধর্মিনী তাকে আমরা ডাকবো এবং আগামী দিনে আপনাদের যে পথ চলা, সেই পথ চলাটা কিভাবে মসৃণ করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনা করব। তো মঞ্চে অভিজিৎ ঘটক ডেপুটি মেয়র আছেন আপনাদের প্রায় সমস্ত মহিলা কাউন্সিলর সবাই আছেন আমাদের মহিলা নেত্রী আলপনা ব্যানার্জি আছেন, একটু আগে বিরতিদি ভাষণ দিলেন আছেন। তো মহিলা কাউন্সিলর এবং মহিলা নেত্রীরা ওখানে উপস্থিত আছেন। আজকে আমরা মূলত যে কথা বলতে এসেছি যে 12 তারিখে লোকসভার নির্বাচন। লোকসভা নির্বাচন বললে ভুল হবে, লোকসভার উপনির্বাচন। কারণ এই নির্বাচনে যিনি এমপি হবেন
তিনি আগামী 2 বছর এমপি থাকবেন এবং 2024-এ আবার লোকসভার ভোট হবে, তখন আবার এমপি লড়াই হবে। কিন্তু আমরা যারা আসানসোল শিল্পাঞ্চলে বসবাস করি, এই 2 বছর আমাদের জন্য কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আপনারা জানেন আমরা যে অঞ্চলে বসবাস করি সেখানে যতগুলো কলকারখানা আছে, বার্নপুরে ইস্কো কারখানা আছে, চিত্তরঞ্জনে লোকোমোটিভ কারখানা আছে, সারা শিল্পাঞ্চল জুড়ে কয়লা খাদান আছে, রেল আছে, LIC আছে, ব্যাংক আছে, BSNL আছে, বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগ আমাদের এই শিল্পাঞ্চলে আছে। এবং আপনাদের হয় বাবা কিংবা মা কিংবা স্বামী এই যে শিল্পগুলো তার সঙ্গে যুক্ত আছে, হয় কেউ সরাসরি চাকরি করেন, অথবা ওই এলাকায় ব্যবসা করেন, অথবা ওই এলাকায় কেউ টোটো কিংবা অটো চালান, অথবা ওই এলাকায় কেউ বিজনেসের সাপ্লাই করেন বা কন্ট্রাক্টারি করেন, বা সেই কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে কাজ করেন। কোনো না কোনোভাবে এই যে শিল্পগুলো, এই শিল্পগুলোর সঙ্গে আমাদের আসানসোলের যে পরিবার, সমস্ত পরিবার যুক্ত আছে। ভারতবর্ষে অনেক প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, জওহরলাল নেহরু থেকে মনমোহন সিং পর্যন্ত, তারা আমাদের জন্য কিছু করে গেছে। কেউ দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা করেছেন, কেউ চিত্তরঞ্জনে লোকোমোটিভ করেছেন, কেউ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন করেছেন, কেউ কয়লা খাদানকে জাতীয়করণ করেছেন, কেউ ব্যাংক জাতীয়করণ করেছেন। তারা কিছু না কিছু করে গেছে। কিন্তু এই প্রথম বিজেপি সরকার, এই প্রথম নরেন্দ্র মোদী সরকার যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সমস্ত সরকারি সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়া হবে। এবারে বলুন তো, ইস্কো কারখানা যদি বিক্রি হয়ে যায়, ইস্কোতে 15,000 লোক কাজ করে, প্রথমে প্রাইভেট মালিক, পুঁজিপতি মালিক, তিনি এসে বলবেন আমার এত লোকের দরকার নেই, অর্ধেক লোককে ছাঁটাই করে দিতে হবে। আর যারা কাজ করবে 10,000 15,000 টাকা মাইনে দেবো, 12 ঘন্টা কাজ করতে হবে, কাজ যদি না করেন আপনাদেরকে হাঁটিয়ে দেবো। আজকে কয়লা খাদান প্রাইভেট করছেন নরেন্দ্র মোদী। এই কলিগুলো যদি প্রাইভেট হয়ে যায়, অর্ধেক লোকের চাকরি চলে যাবে। গোষ্ঠী করে নিজস্ব পরিবার এবং নিজের কিছু রোজগারের জন্য পরিশ্রম করে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদে। प्रणाम और मेरे छोटों को मेरा बहुत बहुत प्यार। आप लोगों का इतना प्यार यहाँ पर देखकर मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे बोलूँ, और सबसे ज्यादा तो मुझे ये लग रहा है कि इनके सामने मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि हमारे घर में बोलने के लिए इन्होंने दिया हुआ है जिम्मेदारी, और हम लोग सबको खामोश कर देते हैं। लेकिन आप लोग सब लोगों के साथ मैं आज दिल से बात करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये जो आज ममता दीदी ने जो हमको ये मतलब एक अपॉर्चुनिटी दी है और अपना प्यार हमें दिखाया है, उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। और आप सबको देख के आपको अभिनंदन करते हैं हम, और मुझे पूरी उम्मीद है, मतलब जरा सा भी शक नहीं है कि हम लोग जीत के नहीं आएंगे, क्योंकि आप सब बहनों का प्यार, भाइयों का इतना आदर और इज्जत हम लोग कुछ भी हमको हो सकता है, कुछ भी नहीं। और इसलिए मेरा कहना चाहूँगी कि आपके भाई जिनको आप लोगों ने हल्ला करना चलবে না, এখানে থাকলে হাল্লা করবেন না। और इतना कॉन्फिडेंस दिया है। ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस तो हमेशा इनका रहा है पूरी जिंदगी, चाहे वो जब इंस्टीट्यूट में थे, चाहे जब वो फिल्मों में आए, चाहे जब वो राजनीति में आए, तो कॉन्फिडेंस तो बोलते थे कि कॉन्फिडेंस द नेम इज शत्रुघ्न सिन्हा। तो इसलिए
हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ा है आप सब लोगों का साथ देखकर। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और मुझे यही लग रहा है कि हमें ज़रा सा भी डर नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा निडर रहे हैं, किसी से कभी डरे नहीं हैं, हमेशा दबंग रहे हैं, और बेटी भी दबंग हो गई। और मेरे बेटे लव कुश, वो भी दोनों एकदम अपने पापा पे हैं, और थोड़ा बहुत मेरे पे है। तो इसलिए बहुत अच्छा, और परिवार, हम लोग पूरा परिवार यहाँ पर जुटा हुआ है। लव नहीं है, खुश है, खुश की बहू है, मतलब मेरी बहू है, मेरी बेटी बहू है ना। मैंने उसको पहले दिन ही बोल दिया था कि मुझे तुम बताओ, तुमको सास चाहिए कि बेटी माँ चाहिए? तो उसने बोला मम्मा मुझे माँ चाहिए। मैंने कहा बस बन गया। फिर तो आप लोग सब लोग, मैं आप लोगों से बस सिर्फ एक विनती करूँगी कि आप लोग अपने भाई को बहुमत से नहीं, इतने भारी बहुमत से ले आइए कि इसका मिसाल पूरे इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में बन जाए एक मिसाल कि ये जीत अद्भुत जीत होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से इनको दरकिनार किया गया, जिस पार्टी में हम लोग थे, हालांकि वो पार्टी अभी हमारी पार्टी नहीं लगती है, हमारी पार्टी थी अटल जी की, अडवाणी जी की, इन लोगों की, जहाँ पर इनको बिल्कुल सर आंखों पे बिठाया गया था। और इन्होंने वो पार्टी तब ज्वाइन की थी जब सिर्फ 2 लोग की पार्टी थी, और वो भी धारा की विपरीत मतलब बोले कि ये मतलब जब आए तब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, ये भी नहीं कि कांग्रेस के साथ, एकदम शिखर पे था। और इनका जो इज्जत हमको मिलनी चाहिए वो इज्जत हमको नहीं मिल रही है। और इनका तो आप लोग को पता है कि जहाँ इज्जत हो वहाँ मिस्टर सिन्हा हो, जहाँ इज्जत नहीं हो तो वो उनको टाटा बाय बाय बोल देते हैं, ठीक है। और जो प्यार दीदी ने दिया है, जो इज्जत उन्होंने दी अपनी ट्वीट करके, हमें तो पता भी नहीं था कि दीदी इनको सोच रही है कि इनको अपना नॉमिनेशन अपना कैंडिडेट बनाए आप लोगों के पास आने के लिए आसनसोल में। तो हमको दूसरे लोगों ने फ़ोन करके बोला कि अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप तो दीदी ने आपको तो ट्वीट करके आपका नाम अनाउंस कर दिया है। फिर इनकी बात दीदी से हुई, और जो दीदी ने जो उनको आदेश दिया वो उन्होंने माना, और बहुत अच्छे से स्वीकृति उन्होंने दी अपनी। और उसके बाद हम लोग तुरंत आप लोगों के बीच में आ गए। सो मुझे लगता है कि आप लोगों का प्यार देखकर, और आप सबों की जो मैं देख रही हूँ जो जोश है, और जोश होश वाला है, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें कोई नहीं हरा सकता है। हम लोग जीत के आएंगे। हमारी मेहनत, आप सबकी मेहनत, और ऑफ कोर्स हमें ये तो दीदी के लिए हमें ये जीतना है, ये दीदी के लिए हमें ये सीट निकालनी है। जो दीदी ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, दीदी और इनको दोनों को मिलकर हम लोग ज़रूर फतेह होंगे, हम लोग ज़रूर जीत के आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू रेशमा जी, अल्पना जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत जोरदार, शानदार और दमदार भाषण दिया अल्पना जी। और इसके पहले मैं तो कल बोल चुका हूँ, और कल अच्छा खासा लंबा चौड़ा भाषण दे चुका हूँ। आज क्या है कि मैं कहीं और से कैंपेनिंग करके आ रहा हूँ, आज बोलता, लेकिन इसके पहले मेरी पत्नी बोल चुकी हैं, और पत्नी के आगे अगर मैंने आके बोला, घर में मुझको बोलने देती नहीं है। घर पे वो जो आपने भी ट्रेलर देखा है, ट्रेलर, घर पे इतना बोलती हैं कि वो जो खामोश टाइटल निकला है मुझसे नहीं निकला, इन्हीं से निकला है। खामोश कर देती हैं, बोलने नहीं देती हैं। और अभी भी मुझे इशारे में कहा कि वहाँ जाओ, लेकिन ज़्यादा बोलना मत, क्योंकि ऐसे भी वो हैं बैठी हुई, सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला शक्ति बैठी हुई है यहाँ पे,
बड़ी जानदार, शानदार और दमदार लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बोला खबरदार, खामोश, ज़्यादा बोला तो मेरी तो बोलती ही बंद हो गई है। कैसे बोलूँ मैं अभी यहाँ पे। लेकिन हाँ, मौलवी बाबू जो मैजिक मैन हैं, मैजिक मैन मौलवी बाबू बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिम्मत करो, कोशिश करो, हमारी भी घर पे वही हालत होती है जो आपकी होती है, तो कोशिश करने में हर्ज नहीं है। मैं भी बाहर इतना बोलता हूँ, घर में मौलवी बाबू ने कहा मेरी भी बोलती बंद रहती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मौलवी बाबू का मामला है, उनकी बात माननी पड़ेगी। अपनी पत्नी के सामने भी ऐसा नहीं दिखाना है कि मैं बिल्कुल इम्प्रेस नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत तो इम्प्रेस कर सकता हूँ। और आज आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया मुझे यहाँ पे, इतना फिर से मान सम्मान दिया, ऐसा लगा कि दोबारा हमारी शादी ही करवा दी आप लोगों से। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो ये मुझे मिला है, जिसे स्टोल कहें, शॉल कहें, हाँ क्या कहें, अपने हाथों से बनाया है, बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। ये जो मुझे दिया है ना, ये इससे एकदम साफ लग रहा है कि या तो मेरी शादी जो भी अपनी, शादी तो खैर अब क्या होगी, खाक होगी, लेकिन हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद थोड़ा स्कोप बन रहा है और किसी से नहीं तो अपनी पत्नी से ही हो जाएगी शादी। और आज आपने ट्रेलर दिखा दिया मुझको यहाँ पे, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं यही कहना चाहूँगा जो मेरी पत्नी ने कहा, मौलवी बाबू ने कहा कि मैं यहाँ पे किसी नेता और अभिनेता की हैसियत से नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ, जैसा आप सबने कहा और माना और जाना, एक दबंग उम्मीदवार, एक बुलंद इरादे लेकर आया हूँ यहाँ पे। और इरादों के पीछे हमारी विश्वविख्यात, इतनी पॉपुलर, द टाइग्रेस ऑफ बंगाल, द ग्रेट लेडी, द ग्रेट लीडर, द ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी ने, हमारी बंगाल की, उनका फोन आया मुझे, उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि শত্রুঘ্ন জি, आप এখন আবার কিছু শুনতে চাই না, আপনার নাম আমরা অ্যানাউন্স করে দিয়েছি, তৃণমূল কংগ্রেস আপনার নাম অ্যানাউন্স করেছে। আমি বলেছি কি ঠিক আছে, শত্রুঘ্ন জি ওইখান থেকে উম্মিদবার হবেন, আমি ওনাকে বলো যেতে ওইখানে আসানসোলের কথা আমার সঙ্গে 2019-তে কল্যাণ ব্যানার্জি বাবু উনি করতেন, আগে অনেক আগে করতেন, বলতেন তুমি যাও आसनसोल, आपकी सोच सही है पर आपका रास्ता सही नहीं है। आपका रास्ता और आपका नेता जिस तरह से आप संघर्ष करते हैं, संघर्ष की प्रतीक हैं और सफलता की प्रतीक हैं, वो है हमारी ममता जी। ममता जी, आपको ममता जी बहुत मानती हैं, स्नेह देती हैं, बहुत अफेक्शन है उनका। आप ममता जी के पास जाएं, ममता जी चाहती हैं कि आप बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में आए। ये सब बातें पहले होती थी, लेकिन ममता जी ने अचानक ट्वीट किया, जैसा मेरी पत्नी ने कहा, और उन्होंने फ़ोन किया मुझे खुद, अब भी 15-20 दिन पहले, कि শত্রুঘ্ন জি আপনাকে যেতে হবে আসানসোল, ওরা আপনার ওয়েট করছে, আপনি না করবেন না প্লিজ, আপনার উপরে একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে, আপনি যান। আমি ওইখানে মলয় বাবুকে বলেছি, উনি সব আপনার গার্ডিয়ান মতো সব করে দেবেন না, আপনি যান ওইখানে। और ममता जी का निर्देश, आसनसोल की जनता का, आवाम का, आप लोगों का आदेश मेरे लिए अध्यादेश बन गया और मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पे इस अपने बड़े परिवार आसनसोल परिवार के बीच शामिल हो गया, मजबूत इरादे लेकर, बुलंद भावनाओं के साथ, कि जैसा मैंने कल भी कहा था, लोगों ने कहा ज़रूर दोहराइएगा कि मैंने कहा कि ज़िंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, आगे और सारा आसमान बाकी है, अभी बहुत कुछ करना है आपके लिए। आपका सुख दुख का भागीदार होके हम सारा परिवार, रामायण परिवार कहें, शत्रुघ्न सिन्हा, पूनम सिन्हा का परिवार कहें, हमारा बेटा भी आया हुआ है, कुछ बेटा है, अभी लव नहीं आए हैं, सोनाक्षी नहीं आई हैं, लेकिन कुछ आया है, कुछ की पत्नी आई हुई हैं, वहाँ देखिए खड़े हैं, वो फ़ोटो खींच रहे हैं। नमस्ते करिए, महिला शक्ति है। हाँ,
तो ये आए नहीं यहाँ पे, बहुत बातें होंगी। मौलवी बाबू ने कहा है यहाँ कोयला खदान मजदूरों की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। हम उसके लिए लड़ने के लिए आए, भिड़ने के लिए आए। आप लोगों को शुभकामना और शुभाशीष देने आए हैं। खामोश ये अच्छे है, खड़ा हो गए। आपने देखा महिला शक्ति का, आपने उदाहरण देखा ममता जी का, कितना उनको तंग किया। अभी चुनाव आया, कितना रूलिंग पार्टी ने अपने धन शक्ति का दुरुपयोग किया, अपना पूरा प्रोपेगेंडा मशीन लगा दिया। 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी, गन पावर, गुन पावर, मनी पावर, मसल पावर पूरा बंगाल में लगा दिया। और तो और कैसी भाषा का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल किया, दीदी ओ दीदी ओ दीदी। क्या मतलब है? भारत के प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए, वो भी किसी महिला के मामले में, महिला मुख्यमंत्री के मामले में। और तो और ममता जी पे अटैक तक करवाया गया, उसके बावजूद खड़ा होने का नारा देकर, व्हील चेयर में बैठकर, अपने हवाई चप्पल और कॉटन साड़ी के साथ यात्रा करते हुए पूरा खेला कर दिया। और ऐसा खेला कर दिया कि रूलिंग पार्टी धूल चाट गई, एकदम खत्म हो गई यहाँ से, और उनको पैकअप कर दिया, वापस भेज दिया। फैला होने का नारा दिया, पूरे विश्व में आज रोल मॉडल बनकर उभर कर आई है ममता जी। इसलिए ऐसी ममता जी के कहने पे, उनके निर्देश पे मैं यहाँ आया हूँ। आपका साथ चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपका उत्साह, जोश और आपका वोट चाहिए। मुझसे ज़्यादा ममता जी की सफलता के लिए, अपने आसनसोल के विकास के लिए, आसनसोल में मुझको जो संघर्ष करना है, उसके लिए आप शक्ति प्रदान करें। महिला शक्ति से ही अपील है। आप तमाम लोग जिंदाबाद, आपका घर बार व्यापार परिवार जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिंदाबाद, आसनसोल जिंदाबाद। जय बांग्ला, जय हिंद, वंदे मातरम। आज প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেছে, আমি শেষ করেছি, সেই এখন তো বলতেই পারি খামোশ। হাই শাবাশ। সহজেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে সুচিকিৎসার একমাত্র প্রতিষ্ঠান সিটিজেন হসপিটাল, বিধাননগর, দুর্গাপুর। হেল্পলাইন নাম্বার 9800897855। অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য ফোন করুন 7477783932 কিংবা 9933475697 এই নম্বরে। সবার আগে খবরের আপডেট পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ক্লিক করুন বেল নোটিফিকেশন আইকনে। আপনি কি সুলভে মনের মতো আবাসন খুঁজছেন? অবশ্যই একটাই নাম, মহাপ্রভু কনস্ট্রাকশন। আজ